So, good evening, students. Now, this is the next lecture of the shear force and bending moment diagram. Here, I will take the shear force and bending moment diagram for the overhang beams. तो पीछे जो मैंने आपको कैंटिलीवर बीम का shear force और bending moment diagram आपको सिखा दिया है किस तरीके से we have to frame the diagram there, and you have seen in that कि shear force जो diagram था in case of cantilever beam, that is only one side of the datum line, right? So here you have seen that the shear force doesn't change the sign in case of the cantilever beam. The reason is that the load in that case that is acting only in one direction or one side of the beam, right? In that case, the load is acting at one side of the beam. So at that, you can say in the cantilever beam, you have seen that shear force doesn't change the sign, and when the shear force doesn't change the sign, we did not calculate the maximum bending moment there, right? So, because जो bending moment, जो maximum bending moment की जो definition है, वो क्या है कि maximum bending moment आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे shear force जो है वो आपका sign change करेगा. तो cantilever beam में ऐसा हो नहीं पाया. Reason was this that जो direction of the forces था, जो आप कह सकते हैं जो फोर्सेस थी वो बीम के सिर्फ एक साइड के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही थी, तो इसलिए हमारी जो शेयर फोर्स डायग्राम थी वो भी आपका क्या हुआ, डेटम लाइन के वन साइड के ऊपर ही हमारी जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो हमने ड्रा किया. सो नेक्स्ट मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम भी बताया, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. इन दैट केस यू हैव ऑब्जर्व वन थिंग, that in that case the load which is acting on the beam, that is acting not on one side but that is acting on both sides of the beam, right? But that is acting on both sides of the beam. So in that case you have seen that shear force there, when you will draw the shear force and you will find that shear force changes the sign there. वहां पे आपने क्या देखा कि shear force ने वहां पे साइन चेंज किया. रीजन क्या था, किस लिए, आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपको जब फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे आपको किस बीम के ऊपर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम कहाँ पे जो है वो चेंज होगी. तो सिंपली सपोर्टेड बीम में यू हैव सीन दैट लोड चेंज इन वंस. लोड की जो चेंज हुआ था वो क्या हुआ था, वंस, एक दफा हुआ था. दैट इज उसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूं तो इट इज लाइक दिस. सो दिस इज the load is acting like this. So here you have seen that load changes once. ये देखिए जी, upward, first upward, then downward and then upward. So here you have seen that the direction of the load that changes once. So here the shear force also changes once. तो shear force भी जो है एक दफा चेंज होगी, and here you can find the maximum bending moment in that case. Now today I am just considering the case of the overhang beam. तो आज जो हमारा है कंसेप्ट है कि हमें ओवरहैंग बीम का किस तरीके से कैसे हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है. अब देखिए, देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द ओवरहैंग बीम एज वेल एज द सिंपली सपोर्टेड बीम. तो पहले आप थोड़ा पीछे जाइए. व्हाट इज योर ओवरहैंग बीम? ओवरहैंग बीम क्या होता है कि देयर आर द टू सपोर्ट्स देयर. व्हाट इन द सिंपली सपोर्टेड बीम, one support at this end and the one support at this end, right? And then the load is acting on the beam. Then the downward load is acting on the beam. You can say that the supports at the both ends in the simply supported beam. But in case of the overhang beam, you have seen that the support is not at the both ends, but it is at some distance away
फ्रॉम द अदर एंड। तो जहां पे एक जे स्पोर्ट है अब हमारी, क्योंकि ये डायरेक्ट मैं बीम का रिएक्शंस लेके ही जहां पे मैं ड्रा करूंगा जो प्रॉब्लम है, तो मैंने वो जे बीम का नहीं बताया कि जहां पे आपको इस तरीके से ये वहां पे ऐसे होता, या इस तरीके से ये हिंज स्पोर्ट जहां पे होती, नॉट लाइक दैट। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसका रिएक्शंस के ऊपर सीधा न्यूमेरिकल के ऊपर आ गया। तो जहां पे आपने देखा कि दो पॉइंट जो है, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, एट दैट पॉइंट देयर इज अ हिंज स्पोर्ट, राइट, एंड सम पार्ट ऑफ अ बीम दैट इज ओवरहैंग on the sport number C sport के बाहर एक पार्ट, कुछ पार्ट जो है बीम का ओवरहैंग है। तो इस किस्म की जो बीम होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरहैंग बीम होती है। एंड दैट कैन बी ओवरहैंग एट वन साइड ऑफ द स्पोर्ट, और that can be on the other side of the sport also. That is not that you will take on the right side only, that can be at one side or at both sides. So this type of the beam is called the overhang beam. तो हमारा आज जो लेक्चर है, लेक्चर जो हमारा 6th लेक्चर है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तो वो किसके ऊपर है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ओवरहैंग बीम। तो आज इसका हम कंसेप्ट समझेंगे कि ओवरहैंग बीम्स के ऊपर हमें, अगर हमें ओवरहैंग बीम्स दिया है तो उस वक्त हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी। कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है जो कंसेप्ट आपने पीछे देखा कि जो उसमें कंसेप्ट दिए थे कि जो सडन चेंज ऑफ फोर्स होगा वो एकदम ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द यू कैन से साइन ऑफ द फोर्स, वेदर इट इज ए पॉजिटिव साइन और द नेगेटिव साइन। एवरी कंसेप्ट ऑफ द शेयर फोर्स फॉर ड्राइंग द शेयर फोर्स डायग्राम और फॉर ड्राइंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज सेम, ओनली you can just find some difference. First difference is that the support of the, you can say, in the overhang beam. Here one point I must add to tell you. Here you will see that, ये देखिए, the force this is acting in the upward direction and this force is acting downward, then again upward and then again downward, right? So you have seen here that in overhang beam, the direction of the force will change twice. Simply supported beam में जो direction of the force था वो सिर्फ क्या था, सिंगल चेंज हुआ था। बट इस केस में आपका जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है दैट विल चेंज twice, दो दफा चेंज हो रहा है, जबकि अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड एंड फिर डाउनवर्ड, सो 2 times इट इज चेंजिंग। सो इट मीन्स दैट जहां से ही आप यू कम टू नो दिस थिंग दैट द shear force changes twice. shear force जो डायग्राम होगी दैट विल चेंज twice in the overhang beam. This is the biggest difference you will see there. जब हम ड्रा करेंगे देन यू कम टू नो व्हाट इज द डिफरेंस। और जहां पे आपको एक पॉइंट और मिलेगा जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम जहां पे 2 दफा चेंज होगी और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा इन दिस केस दैट विल चेंज वंस। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहां पे 1 दफा चेंज होगा और शेयर फोर्स डायग्राम आपको 2 दफा चेंज होगी। तो उससे हमें क्या कंसेप्ट मिलेगा कि जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका एक वंस चेंज होगा, यू विल गेट हियर इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, you will get the point of contraflexure. And what is the point of contraflexure? Where the bending moment diagram changes from positive to negative or negative to positive, right? So that point is called the point of contraflexure, and at the point of contraflexure you can say your bending moment is 0. You understand this thing? तो ये हम सारा कंसेप्ट एक एक करके आपको लिखवाएंगे। ये फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिया कि
ओवरहैंग बीम में ये मुझे क्यों जरूरत पड़ी कि ओवरहैंग बीम का मैं सेपरेट इसका दोबारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करूंगा, जबकि मैंने ऑलरेडी कैंटिलीवर बीम का शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करके दे दिया है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रा किया है, एज वेल एज द simply supported beam also, but here you will see some other concept also. तो इसका that is much more important that, तो जहां से हम आज शुरू करेंगे। So देखिए this is your overhang beam। तो overhang का concept आपको पता चल गया, why we set overhang। Here you have seen that there are the two support here at point A and at point C, और इसके बाद जो beam का part है that is a overhang part, जिसके ऊपर जहां पे एक लोड जो है आपका 6 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये हिंज सपोर्ट है, तो जहां पे रिएक्शन फोर्स होगी आपकी आर ए एंड जहां पे रिएक्शन फोर्स होगी आर सी। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड इन केस ऑफ ओवरहैंग बीम, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, हमें पहले रिएक्शन फोर्सेस को निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, याद रखिए, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्सेस। सो कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्सेस आर ए एंड आर सी। आर ए और आर सी दो रिएक्शन फोर्सेस को आपने फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसा कीजिए, सिग्मा एम सी इज इक्वल टू 0, स्टैटिकली इक्विवेलेंट इक्वेशन आप लगाइए, कौन सा, मूवमेंट का। तो आप ये इक्वेशन लगा दीजिए, सिग्मा आर यू कैन से टेक मूवमेंट अबाउट द पॉइंट सी, सिग्मा एम सी इज इक्वल टू 0, right? So take movement at C, C के ऊपर आप मूवमेंट ले लीजिए आप। अब देखिए C के ऊपर हम मूवमेंट ले रहे हैं, दिस फोर्स इज आर ए, सो आर ए लेफ्ट साइड के ऊपर जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा दैट इज पॉजिटिव। So RA, and what is the distance, 2 mm and 2 mm, that is 4 mm into 4, right? अब आइए ये इसके लोड के ऊपर, लोड कितना हो गया आपका, लोड आपका हो गया, दिस इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है आपका यूडीएल दिया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये 2 मीटर है, 2 मीटर्स, तो दिस इज 20 इंटू 2, दैट इज 40 किलो न्यूटन, राइट, 40 किलो न्यूटन। अब मुझे बताइए दिस लोड विल एक्ट एट विच पॉइंट, दिस लोड यू कैन से दिस लोड विल एक्ट एट द सेंटर हियर। तो जहां सेंटर में एक्ट करेगा, तो जहां से जहां तक जो डिस्टेंस है, ये अगर टोटल 2 मीटर है तो दिस इज 1 मीटर, राइट, एंड दिस इज 2 मीटर, 2 इंटू 1, सॉरी 2 प्लस 1 दैट इज 3 मीटर। तो ये 3 मीटर के ऊपर एक्ट करेगा, तो दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये जो है कौन सा मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज माइनस का होगा। तो आप कह सकते हैं -20 इंटू 2 इंटू 3, राइट, 20 इंटू 2 इंटू 3। और आप चले जाइए इस पॉइंट के ऊपर, राइट। तो इस पॉइंट के ऊपर जहां से ये 6 है, 6 क्या है, दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो राइट साइड में जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा दैट इज माइनस, तो 6 इंटू 2 दैट इज द डिस्टेंस इज 2 हियर, सो दिस इज -6 इंटू 2, राइट, सो दिस इज इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड दिस? सो देयरफॉर आर ए इंटू 4 माइनस 120 माइनस 12 -1
ये देखिए दिस इज क्लॉकवाइज है, सी के ऊपर ले रहे हैं, क्लॉकवाइज है राइट, और ये आप सी के ऊपर ले रहे हैं, ये इधर से, तो राइट साइड से जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो नेगेटिव होता है अगर आप साइन कन्वेंशंस को देखें, और लेफ्ट साइड से जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा राइट। तो ये आपका जहां से देखिए इस पॉइंट के ऊपर, you understand this point is plus 12, this is equal to 0, this is also clockwise right, clockwise positive and anti-clockwise is negative. I am taking this, so you can say RA into 4, this is equal to 108, and therefore RA equal to 27 किलो न्यूटन मीटर। तो RA जो आपका है, व्हाट इज RA, दिस इज, ये आपका आ गया 27 किलो न्यूटन। RA इज इक्वल टू 27 किलो न्यूटन, ये फोर्स RA। और अब फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स हमें दूसरा कौन सा कैलकुलेट करना है, RC। तो RC कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो स्टैटिकली इक्विवेलेंट इक्वेशन है सेकंड, उसको हम यूज करेंगे, सिग्मा Fy दिस इज इक्वल टू 0, सिग्मा Fy दिस इज इक्वल टू 0, एंड ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज अपवर्ड फोर्स 27, दिस इज डाउनवर्ड फोर्स माइनस 40, and this is plus RC, RA plus RC, and this is minus 6. This is minus 6, this is equal to 0, right? Therefore, 40, this is 40 minus this 40, 27 minus 40 plus RC and minus 6. This is equal to 0. Therefore, RC is equal to 47 and minus 27, 46 minus 27, that is 19 kilo Newton, that is 19 kilo Newton, right? तो आपने ये दोनों रिएक्शंस फोर्सेस आपने निकाल ली, दिस इज योर 19 किलो न्यूटन, राइट? This is your 19 kilonewton. You know that how we have calculated the reaction forces. तो reaction forces आपने निकाल ली है. Now we will draw the shear force diagram. अब हम इसकी shear force diagram ड्रा कर लेंगे, right? इसको इस तरीके से लिखते हैं, RA right. तो ड्रा द shear force diagram. तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करने के लिए क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स से आप क्या कीजिए, एक प्रोजेक्शंस नीचे तक ड्रा कर लीजिए. यू अंडरस्टैंड दिस? देन फ्रॉम दिस पॉइंट बी से यू विल टेक द प्रोजेक्शन फ्रॉम पॉइंट सी, right, and then from point D, you understand that? Now you draw the datum line. आप क्या करें, एक datum line आप ड्रा कर लें. Suppose this is your datum line, that is 0 and 0. This is your, I will say this is your datum line, right? सो आ जाइए, शेयर फोर्स डायग्राम हम इसकी अब ड्रा करते हैं, राइट? सो देखिए, अगर दिस इज द पॉइंट ए,
अगर इसके लेफ्ट के ऊपर हम जाए एट पॉइंट ए, you will see that there is no load, there is no force at the left part of the point A. But at point A, you will see here that load that suddenly changes from 0 to 27 kilo Newton, right? तो load suddenly changes कहाँ से 0 से 27 किलो न्यूटन पर। तो आप ऐसा करें, एक पॉइंट, सपोज ये आपका पॉइंट है 27 किलो न्यूटन, तो ये आप पॉइंट रख लें 27 किलो न्यूटन के ऊपर ये आ गया, राइट। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद दूसरा लोड क्या है एट पॉइंट बी, लोड कितना होगा 40। कैसे? दिस इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर आप चाहें तो लोड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी नीड टू कैलकुलेट द लोड हियर, एक माइनर सा है, सो देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन हियर। तो सीधे हम कर सकते हैं, सो 20 किलो न्यूटन, और ये लेंथ कितना है, दिस इज 2 मीटर, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका लोड होगा वो कितना होगा 40 किलो न्यूटन। तो 40 किलो न्यूटन आपका लोड होगा, राइट। जहां पे 27 जहां पे है, left at the left of this how much load is there 27, तो इसका मतलब है जहां से लेके जहां तक 27 है तो 40 आपने लेना है। तो जहां पे पॉइंट आप ले लीजिए, जहां पे थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, जहां पे पॉइंट आप ले लीजिए दैट इज -30 किलो न्यूटन, राइट, -30 किलो न्यूटन। यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये कौन सा लोड था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था। तो इसलिए इन केस ऑफ के जहां पे हम इसको मिटा देते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड दिस। So you can say from A to B, लोड क्या है? लोड इज UDL, राइट। A to B लोड कितना है? UDL है, दैट इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो जो शेयर फोर्स डायग्राम होगी, शेयर फोर्स जो आपकी होगी, स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स और शेयर फोर्स, दैट इज क्या होगी आपकी? दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, straight line from this point to this point up to point B, from point A to point B क्या होगी? straight line होगी from A to B, right? तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, तो हम इसके स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, इसको मिला दीजिए आप, राइट। जो स्ट्रेट लाइन है इसे आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, राइट। तो बी के ऊपर आपका आ गया this is the straight line, right? You understand this? Now फ्रॉम B to C, आप अगर कहें फ्रॉम B to C, लोड क्या है? देयर इज नो लोड, मींस W इज इक्वल टू 0। लोड क्या है? 0 है। तो शेयर फोर्स क्या होता है? शेयर फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको याद रखना है एकदम। शेयर फोर्स क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। तो जहां पे देखिए लोड जहां आपका नहीं था, तो शेयर फोर्स आपकी जहां से लेके फ्रॉम B to C, शेयर फोर्स आपकी क्या हुई? हॉरिजॉन्टल हो गया, राइट। अब आइए इस पॉइंट के ऊपर, नाउ RC मैंने कितना लिखा है? दैट इज 19 किलो न्यूटन पॉजिटिव। तो क्या होगा, जहां पे आपका यूनिफॉर्म था, तो एट पॉइंट C द लोड suddenly changes -13 किलो न्यूटन टू +19 किलो न्यूटन,
राइट। तो जहां पे क्या है, अगर हम ये 19 किलो न्यूटन है, इसके पीछे वाला लोड देखें तो ये कितना है आपका -13 किलो न्यूटन, दैट इज था, ये आपका लोड था बेसिकली, क्या था ये 47, राइट 27, एंड जिस पॉइंट के ऊपर क्या था 40 था, राइट। तो ये आपका -40 था, तो -13 आ गया ऊपर से लेके जहां तक, राइट। तो जहां पे क्या होगा 19 - 13 कितना होगा +6, तो जहां पे आप पॉइंट ले ले +6, तो जहां से लेके जहां तक ये लोड जो सडन चेंज होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी, राइट। यहां से जहां तक द लोड इज लाइक दिस, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी। जहां से जहां तक इसकी डायरेक्शन इज लाइक दिस, एंड देन अगर फ्रॉम C to D, अब बात करते हैं फ्रॉम C to D की। सो फ्रॉम C to D लोड क्या है यहां पे, देखिए इसको, फ्रॉम C to D लोड इज 0। C to D क्या है, लोड भी आपका W क्या था, आपका 0 था, तो शेयर फोर्स क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, शेयर फोर्स क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो जहां पे क्या हो गया, ये शेयर फोर्स आपकी, ये जहां से जहां, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, राइट। तो ये आपका था 6 किलो न्यूटन। अब ये पॉइंट कितना लोड रहा, ये मुझे टोटल 19 था, तो -13 से ऊपर गया, तो इसके डेटम लाइन के ऊपर 6 किलो न्यूटन, और ये 6 किलो न्यूटन क्या है, डाउनवर्ड है, तो इसलिए दिस इज 0, राइट। तो ये जो आपकी है, ये आपकी शेयर फोर्स डायग्राम है, दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। ये जो आपकी सो दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये आपका है शेयर फोर्स डायग्राम, राइट। इसको बाहर करते हैं। Now this is your shear force diagram. As before starting the shear force diagram, I have given you one concept there, which is very much important. Again, I will repeat that in case of overhang beam, I told you, you have seen here also, you can observe here also, that the load changes here twice. In case of overhang beam, the load changes twice here. Means this is upward, this is downward. Right? This is upward, this is downward once. Again this is upward and this is downward once. तो मैंने कहा था कि अगर आप लोडिंग डायग्राम देखेंगे तो लोडिंग डायग्राम से ही आपको ये पता चल जाएगा कि जो हम शेयर फोर्स जहां पे ड्रा करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम जो ड्रा करेंगे, वो शेयर फोर्स डायग्राम आपकी 2 दफा चेंज होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वंस चेंज होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. That you can check, that you can observe while seeing the load conditions on the beam there. So in case of overhang beam, as I have already told you, in that case the load changes twice there.
So it means that shear force that will change twice, or shear force changes the sign here twice. अगर मैं कहूं this sign is your positive sign, तो जहां पे एक पॉइंट ये है जहां पे shear force ने ये चेंज किया, राइट, shear force इस पॉइंट के ऊपर चेंज हुई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव shear force जहां पे चेंज हुई, ये आपका सारा नेगेटिव चल रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर, फिर इस पॉइंट के ऊपर, दिस पॉइंट इज सी बिकॉज दिस इज एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर अगेन यू हैव सीन दैट shear force again changes from negative to positive. So you can see from here, when you have drawn this diagram, your concept which is already I have given, that is proved here, that in overhang beam shear force changes the sign twice there. तो जहां पे आपने देखा कि इसने दो दफा साइन चेंज किया, जब shear force ने दो दफा साइन चेंज किया, तो as per the derivation, as per the definition of your this bending moment or maximum bending moment, तो maximum bending moment हमें कहाँ मिलेगा, जहां पे आपका shear force sign change करेगा, at that point you will get the maximum bending moment. You understand? जहां पे कपल होगा, तो कपल तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां मिलेगा, जहां पे shear force आपका साइन चेंज करेगा। बट द प्रॉब्लम इज हियर द shear force changes the sign at 2 points. One point I will say, this is one point, you can say point E, तो ये जहां से आप प्रोजेक्शन ड्रा कर लीजिए, you can say this is at distance x, this is at distance x from here, तो जहां से x का डिस्टेंस है, तो ये जहां का भी जो डिस्टेंस होगा आपका क्या होगा, x होगा, राइट। तो हमें बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट के ऊपर भी निकालना पड़ेगा। सपोज यू कैन से दिस इज पॉइंट E, जब बीम के ऊपर ये पॉइंट क्या है, E है, तो हमें E के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा और हमें C के ऊपर भी बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। सो इट मीन्स दैट हमें जो जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, ई, बी, सी एंड डी, चारों पॉइंट्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट्स टू ड्रा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम आइदर एट पॉइंट ई और एट पॉइंट सी। जे या तो ई के ऊपर मैक्सिमम होगा या सी के ऊपर मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी shear force डायग्राम है, वो चेंज साइन उसने पॉइंट ई के ऊपर किया और जहां पॉइंट सी के ऊपर किया, जहां पे, राइट। तो ये हम अभी कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे कि हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट के ऊपर निकलता है, राइट। चलो देखिए अभी, अब आ जाइए आप बेंडिंग मोमेंट्स के ऊपर। तो बेंडिंग मोमेंट्स, हमें बेंडिंग मोमेंट्स डायग्राम हमें ड्रा करना है। उसके लिए हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा एट पॉइंट ए, ई, बी, सी एंड डी। अब देखिए, हमें वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम मोमेंट, जैसे कि मैं आपको अभी ऑलरेडी आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट यू। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमारा इस लोकेशन के, दिस लोकेशन इज ई, हमारा इस लोकेशन के ऊपर भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो सकता है और इस लोकेशन के ऊपर भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, राइट। सो इट मीन्स दैट कि हमें इस लोकेशन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए वी मस्ट नो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर और द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। सो लेट अस से कि मैं ये डिस्टेंस जो था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू एक्स। आई हैव टेकन एक्स इज द डिस्टेंस, जहां पे एक्स तो एक्स इज द distance of A, E.
ए ई का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, राइट। तो एज यू नो, हमें अगर बेंडिंग मोमेंट्स पॉइंट के ऊपर निकालना है तो एक रिलेशन है एम ई माइनस एम ए, दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द shear force diagram, राइट। चाहिए एक रिलेशन आपने पढ़ा, एम ए का जो एम ए मूवमेंट ऑफ ए है वो तो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो एम ई आपका आएगा एरिया ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम कौन सी, दिस शेयर फोर्स डायग्राम, बिकॉज ये पॉइंट ई है जिसका मैंने प्रोजेक्शन ये लिया है। तो 0 ए और ई के बीच में जो शेयर फोर्स डायग्राम है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो इट मींस दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, यू नो दिस दैट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, शेयर फोर्स एट ई। अगर मैं शेयर फोर्स ई के ऊपर फाइंड आउट करूं तो वो क्या है, शेयर फोर्स एट ई इज इक्वल टू 0, राइट। शेयर फोर्स एट पॉइंट ई दिस इज इक्वल टू 0। तो ई के ऊपर मैं शेयर फोर्स कैलकुलेट करता हूं, कितना आएगा, 27 माइनस 20 इंटू एक्स। 27 दिस इज अपवर्ड, और जहां से लेके जहां तक ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अगर इफ एक्स इज द लेंथ, तो जहां से लेके जहां तक जो लोड होगा दैट इज 20 इंटू एक्स, राइट। दिस इज इक्वल टू 0। therefore x is equal to minus 27 minus 20 and it is equal to 1.35. So x is equal to 1.35 मीटर। तो x की वैल्यू हमें मिल गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करने से हमें क्या, किस तरीके से फाइंड किया कि हमने देखा कि ये जो शेयर फोर्स है पॉइंट ई के ऊपर आपका चेंज हो रहा है, तो नेचुरली पॉइंट ई के ऊपर शेयर फोर्स आपका क्या होगा, 0 होगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गया, राइट। तो आप देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है, x की वैल्यू आपके पास है। अब देखिए इस पॉइंट जहां पे आप देखें, जहां पर भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो सकता है और जहां पर भी ये जो जहां पे साइन चेंज किया इसने, इस पॉइंट के ऊपर भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो सकता है जहां पे ये साइन चेंज हुआ। सो वी कैन कैलकुलेट, देखिए अगर मैं एम ई माइनस एम ए लिखता हूं, एम ई अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई निकालना है तो एम ई माइनस एम ए दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द एसएफ डायग्राम। तो हम एम ई जहां से निकाल लेंगे, एम ए आपका 0 है। तो आपने देखा कि डिफरेंस ऑफ द मूवमेंट्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द एसएफ डायग्राम। इसी तरीके से अगर मैं एम सी माइनस एम डी करूं या एम डी माइनस एम सी करूं, तो एम सी माइनस एम डी दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ जे। अगर मैं कहता हूं दिस डायग्राम इज डायग्राम नंबर 2 एंड दिस इज योर डायग्राम नंबर 1, एरिया ऑफ द एसएफ डायग्राम 2। देखिए ये बड़ा कंसेप्ट समझने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मूवमेंट है वो हमारा एरिया ऑफ द शेयर फोर्स, जो डिफरेंस ऑफ द मूवमेंट है, एरिया ऑफ द शेयर फोर्स बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक जहां पे एक आपको एक ट्रिक जो आप समझ सकते हैं, जहां पे छोटा सा मेथड है जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस,
ये जो ट्राइंगल का एरिया है इसका हाइट 27 है एंड इसका जो अभी एक्स मैंने निकाला 1.35 मीटर। इफ यू विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस एंड इफ यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस, जिसका हाइट कितना 6 है और जहां से लेके जहां तक है, you will come to know that the area of this area number 1, that area is more as compared to the area number 2। एरिया जो 1 का होगा वो एरिया नंबर 2 से ज्यादा होगा, और जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, जब आपके पास कंडीशन ये दो बेंडिंग मोमेंट को लेके हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां पे आपका ME, आपका बेंडिंग मोमेंट जो है ग्रेटर होगा। तो आप कह सकते हैं तो इस केस में आपका ME जो है ग्रेटर देन, दूसरा MC पे आया था, दूसरा ग्रेटर देन MC, because the area of this diagram, the area of this diagram, that is ME minus MA, this is equal to a shear force diagram of this. If I will calculate the area of this, that area is much bigger than that of the area number 2, that is MC minus MD वाला, MDR minus MC करके, right? So तो जहां पे जो आपका होगा MC माइनस MD, तो जहां पे जो होगा इसका एरिया इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा वो इस पॉइंट के ऊपर एज कंपेयर टू C ज्यादा होगा, राइट? ये हो गया आपको एक कंसेप्चुअल पार्ट बताने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरीके से अगर आपके पास डायग्राम आपके पास दिया है और आप इस किस्म की डायग्राम है कि जहां पे शेयर फोर्स आपकी साइन 2 टाइम्स चेंज करती है एंड मोस्टली दैट इज इन द ओवरहैंग बीम, ऐसे केस में इफ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो आपको किस तरीके से जहां पे कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पता लगेगा, क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट है, डिफरेंस ऑफ द 2 बेंडिंग मोमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम। तो जो पहली शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया देख लीजिए जिसके बीच में जो पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट आता है जिसको आपने निकालना है, और दूसरा शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया देखिए जिसके ऊपर अपना बेंडिंग मोमेंट निकालना है। जो एरिया आपका ग्रेटर होगा वहां पे क्या होगा, आपका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा। यू अंडरस्टैंड? तो ये हो गया कंसेप्ट आपका, जो भी जहां पे कंसेप्ट मुझे जहां पे दिखाई दिए, जो भी जहां पे कंसेप्ट थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए। अब आ जाइए इसका न्यूमेरिकल पार्ट में। इसके न्यूमेरिकल पार्ट में क्या करेंगे, अब हम इसके बेंडिंग मोमेंट्स निकालेंगे सभी पॉइंट्स के ऊपर। सभी पॉइंट के ऊपर हम बेंडिंग मोमेंट इसके कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेट, अब हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। कैलकुलेट bending moments at A, E, B, C and D। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कंसेप्ट के जरिए कि पॉइंट E के ऊपर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि जहां पे अगर 2 पॉइंट्स को हमने देखना है कि किसके ऊपर मैक्सिमम होगा, तो E के ऊपर मैक्सिमम होना चाहिए। ये अभी कैलकुलेट करके देखते हैं, राइट? सो बेंडिंग मोमेंट एट A, दैट इज MA, बेंडिंग मोमेंट एट A, MA इज 0। हम जहां पे बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, अब आइए जाइए बेंडिंग मोमेंट ME को निकालने के लिए हम ये करेंगे ME minus MA, this is equal to the area of the SF shear force diagram, right? Area of the shear force diagram. So therefore MA क्या है, 0 है। एरिया ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम कौन सा होगा, ये ME इस पॉइंट के ऊपर है, तो ये एरिया, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या आएगा डायग्राम का, 1 × 2 × x
इंटू 27, तो x की वैल्यू हमने निकाली थी 1.35, है ना। सो देयरफॉर एम ई इज इक्वल टू 1.35 इंटू 27। ये मुझे जरा बता दीजिए, कैलकुलेटर में नहीं ला पाया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एम ई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ई? So this is just tell me, just 18. So this is 18.225 Newton meter, right? So ME you have calculated. Now you come to the point MB. आप इसमें MB की वैल्यू निकाल लीजिए। What is the value of MB? MB की क्या वैल्यू आएगी? This is 27 into 2, yes, 27 into 2 minus 20 into 2 into हम इस साइड से ले लें, नॉट फ्रॉम दिस साइड, वी विल टेक फ्रॉम दिस साइड। तो जहां पे क्या था 19 था, राइट, दिस इज 19। तो ये क्या है, इसके राइट साइड है, राइट साइड जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या हुआ पॉजिटिव। तो एम बी दिस इज 19 into 2 and MB, yes, 19 into 2 minus 6 into 4, minus 6 into 4, right? So this is equal to 14 kilo Newton meter. So MC कितना आएगा? MC मूवमेंट एट सी, जहां से ले लीजिए तो ये नेगेटिव आएगा, -6 into 2, -6 into 2, राइट, दैट इज -12 किलो न्यूटन मीटर। और MD इज इक्वल टू 0, MD आपका 0 होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? जहां से स्टार्ट किया जहां से खत्म हुआ। तो ये आपने मूवमेंट निकाली है। अब देखिए न्यूमेरिकली भी आप देखेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था कि मूवमेंट एट पॉइंट ई, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई, देयर इज द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। तो दिस वैल्यू इज 18.225 एंड द सेकंड बेंडिंग मूवमेंट वी आर गेटिंग एट पॉइंट सी। तो जहां पे तो इसकी वैल्यू -12 किलो न्यूटन है, जहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, -12 किलो न्यूटन है। तो इसलिए आपका बेंडिंग मूवमेंट जहां पे आपने देखा कि बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई, दैट देयर इज द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, और ये आपने जहां पे निकाल लिया, राइट। अब हमारे पास ये सारे मूवमेंट्स की वैल्यू आ गई, तो हम कोशिश करते हैं अगर जहां पे फिगर ड्रा हो जाती है तो जहां पे करेंगे, नहीं तो ये सेपरेट मुझे इसकी फिगर जो है दोबारा ड्रा करनी पड़ेगी। अगर मैं जहां पे डेटम लाइन ले लूं, देखता हूं फिगर ड्रा होती है या नहीं तो सेपरेट ही कर देते हैं। वी विल, ये इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं हम, वी विल राइट डाउन द वैल्यू, कहीं सेपरेट इसकी वैल्यू ले लेंगे। तो ये आपका MA
आपका 0 आया, ME 18.225, MB 14 किलो न्यूटन, MC -12 किलो न्यूटन एंड MD 0। ये मैंने इसकी वैल्यू लिख ली। तो इसको मिटा देते हैं, इस डायग्राम को जहाँ पे हम सेपरेट ड्रा कर लेते हैं। अदरवाइज आपको एक ही पेज में ड्रा करनी है डायग्राम्स, लेकिन जहाँ पे मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, आई एम नॉट, कर तो लूँगा जहाँ पे, बट आई एम नॉट हैविंग इनफ स्पेस देयर। तो इसलिए मैं इसको, मुझे दोबारा इसका बीम ड्रा करना पड़ेगा। चलो ये मैं बीम ड्रा कर लेता हूँ। सो दिस इज योर बीम, राइट। So this is point A, B, C and D. 4 points are there. So point A to B uniformly distributed load था, sorry, from A to B क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था आपका। तो आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ड्रा कर लीजिए। So this is 20 किलो न्यूटन पर मीटर, जहाँ पे रिएक्शन फोर्स थी, राइट। ये पॉइंट बी, आप सी के ऊपर भी एक रिएक्शन फोर्स थी आपकी, जस्ट लाइक दिस, एंड डी के ऊपर आपकी 6 किलो न्यूटन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये 2 मीटर एंड 2 मीटर, राइट। तो ये हमने RA भी कैलकुलेट किया था। तो RA 27 किलो न्यूटन, इसका जरूरत नहीं है अभी। और RC हमने जो कैलकुलेट किया था, RC क्या था, 19 किलो न्यूटन, राइट। तो शेयर फोर्स डायग्राम तो मैंने ड्रा कर दी। बेसिकली चाहिए था कि अगर मेरे पास ये स्पेस होता, तो इसी स्पेस के ऊपर मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ, बिल्कुल इसके नीचे होनी चाहिए, ना कि एडजाइनिंग होनी चाहिए, बट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द स्पेस आई एम ट्राइंग द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हियर। तो इसमें भी वही करना है। क्या करना है, पहले आप अपने प्रोजेक्शंस जो लिए थे, जैसे ये वाला, तो इस तरीके से आपने प्रोजेक्शंस ले लिए, लेकिन ये आप याद रखें कि ये चीज़ जो है, ये जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, दिस इज, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, बिलो दिस, आई एम स्टार्टिंग बिलो दिस, राइट। सो आई एम नॉट स्टार्टिंग सेपरेटली हियर। तो ये मुझे स्टार्ट करना पड़ा, और इसके बीच में एक पॉइंट था ई, जहां पे एक पॉइंट था, राइट। तो इसका भी आप ले लीजिए, मीन्स ये था 1.35 मीटर के ऊपर, राइट। तो अब वही प्रोसीजर है। क्या करेंगे हम, एक डेटम लाइन ले लेंगे। दिस इज योर डेटम लाइन, 0 0 इज द डेटम लाइन। अब देखिए एम ए क्या है आपका, एम ए आपका 0 है, तो एम ए आपका 0 हो गया जहां पे ही। अब एम ई जो था, एम ई है आपका 18.225, तो मैं सपोज करो ये पॉइंट ले लेता हूं, ये आपका आ गया 18.225, राइट। इस पॉइंट के ऊपर पहले मैं ये सारे पॉइंट्स जो है, एम बी कितना है, 14 किलो न्यूटन, ये आपका 18.225 है, ये आपका 14 किलो न्यूटन है। तो ये जहां पे पॉइंट आएगा, राइट, एम इज, एम इज 18.225 और एम बी है आपका 14 किलो न्यूटन। तो 14 किलो न्यूटन कहां पे आएगा, वेयर इज यूर दिस 14 किलो न्यूटन। तो 14 किलो न्यूटन आप कर लीजिए, सपोज करो इस पॉइंट के ऊपर, ये आपका आ गया 14 किलो न्यूटन, राइट। अब देखिए एमसी आपका क्या है,
दैट इज -2 किलो न्यूटन। MC है आपका 2 किलो न्यूटन माइनस, तो ये करीब जहां पे आएगा MC इज -2 किलो न्यूटन एंड दिस पॉइंट विल तो MC था, व्हाट इज MC, माइनस था, 0 से -12 किलो न्यूटन था, तो 12 किलो न्यूटन मैं ये ले लेता हूं, दिस इज -12 किलो न्यूटन मीटर है, ये सारे किलो न्यूटन मीटर हैं, राइट, ये किलो न्यूटन मीटर है क्योंकि ये वो है, राइट। सो दिस पॉइंट जहां पे, ये पॉइंट मैंने ले लिया, इसको रहने दीजिए, दिस पॉइंट इज हियर एंड MD इज 0, और MD क्या है आपका, MD आपका 0 है जहां पे देखो। अब देखिए, अब आ जाइए शेयर फोर्स के ऊपर, फ्रॉम A टू E, फ्रॉम A टू E योर शेयर फोर्स जो है वो क्या है, A से E तक शेयर फोर्स क्या है आपकी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या है, शेयर फोर्स इज डिक्रीजिंग फ्रॉम A टू E, मीन्स फ्रॉम 27 किलो न्यूटन टू 0, शेयर फोर्स आपकी क्या कर रही है, जहां पे डिक्रीजिंग है, तो जो हमारी यहां पे वो डिक्रीजिंग है, और ये क्या है, दैट इज द लीनियर, राइट, ठीक है ना, डिक्रीजिंग है तो लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, तो अगर शेयर फोर्स आपकी स्ट्रेट लाइन है और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, एंड डिक्रीजिंग पैराबोला होगा। तो डिक्रीजिंग पैराबोला आप ड्रा कर लीजिए इस तरीके से, राइट, सो दिस इज योर डिक्रीजिंग पैराबोला। अब देखिए E से B आपकी शेयर फोर्स जो है इंक्रीज हो रही है, ये देखिए, इसको माइनस साइन को बोलिए, जस्ट सी द मैग्नीट्यूड 13 किलो न्यूटन, सो हियर इज 0, हियर इज 13 किलो न्यूटन, इट मींस दैट शेयर फोर्स इज इंक्रीजिंग हियर एंड शेयर फोर्स इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ये भी क्या होगा आपका पैराबोला होगा, बट दैट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पैराबोला आपका इस तरीके से होगा, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, आ जाइए आप MC -12 किलो न्यूटन, MC कितना है, -12 किलो न्यूटन, दिस इज द 12 किलो न्यूटन आई हैव टेकन। तो MC क्या था, जहां पे देखिए आप, शेयर फोर्स इज द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम B टू C, शेयर फोर्स इज horizontal from B to C, shear force is horizontal, and when the shear force is horizontal, your bending moment, that is the linear or straight line, तो ये bending moment जहां से लेके जहां तक जो है तो ये कोई इतना अच्छा ड्रा नहीं हुआ, बट दिस इज ए लीनियर, जहां से लेके जहां तक जो बेंडिंग मोमेंट था, सो दिस बेंडिंग मोमेंट इज लीनियर हियर, राइट, सो दिस इज ए लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन from this point to from B to C there is a straight line। अब देखिए C from B to C, और आपका ये B से C तक आपका स्ट्रेट लाइन था, और C से ये आपका क्या है, C से जहां तक D तक आपका भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बेंडिंग मोमेंट आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइक दिस, राइट, सो बेंडिंग मोमेंट इज लीनियर लाइक दिस। सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आपका क्या था, ये आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थी, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
So this is your bending moment diagram, right? So अब देखें आप इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि इन द ओवरहैंग बीम shear force changes the sign twice whereas the bending moment changes the sign once. तो जहां पे अगर ये पॉजिटिव साइन है बेंडिंग मोमेंट का, ये आपका नेगेटिव है, और इस पॉइंट के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट है उसने अपना साइन चेंज किया है। तो ये जो पॉइंट होगा, अगर मैं इस पॉइंट को ओ रखता हूं तो ये जो आपका पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द, मैं जहां पे लिख लेता हूं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर क्या होता है? जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा? जीरो होगा। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, तो जहां पे कंट्राफ्लेक्चर में पॉइंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, बट इट इज नॉट ऑलवेज सर्टन दैट योर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। Sometimes your bending moment is not zero at this point here also. तो ये हम bending moment आपका जीरो रहेगा, yes. So your bending moment is zero here at this point. तो अब देखिए इसका अगर मैं कंट्राफ्लेक्चर का पॉइंट निकालूं तो how we can, तो जहां तक क्लियर है आपको। अब देखिए अगर मुझे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर निकालना है कि किस पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बेंडिंग मोमेंट किस लिए जीरो हुआ, कि क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर जो था ये डेटम लाइन के ऊपर है, और डेटम लाइन के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो अब देखिए इसको कहीं पे थोड़ा सा स्पेस लेके अगर आपको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर निकालना है तो देखिए क्या करेंगे हम। एक पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर आया इस पॉइंट के ऊपर, राइट, जहां से आया, जहां से आप क्या करें, इसके ऊपर बीम के ऊपर जहां से प्रोजेक्शंस ले लें, ये प्रोजेक्शन ले लें, राइट। तो मैं कहता हूं कि जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है, जहां से लेकर जहां तक जो डिस्टेंस है, इसे आप एक्स डैश रख लें, राइट। अब हमें क्या निकालना है कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर मींस इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, मींस बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ओ। आप ओ की नहीं, आप एफ रख लीजिए, बेंडिंग मोमेंट एट एफ इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर के ऊपर है, तो अगर मैं एफ के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं, मींस एफ इज द पॉइंट हियर, अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं तो हमें क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट एफ दिस इज इक्वल टू जीरो। अब एफ के ऊपर निकालिए, मैं इस साइड से लेता हूं, दिस इज 19 इंटू 2, ये इसके राइट साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, साइन कन्वेंशंस भी थोड़े याद रखिएगा आप। 19 इंटू नो नॉट 2, 19 इंटू एक्स डैश, जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना है, एक्स डैश है, ये 19 है, जहां पे मैंने बेंडिंग मोमेंट निकालना है, 19 इंटू एक्स डैश, राइट। और दूसरा कौन सा, J6, दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज, राइट साइड से क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, सो -6 इंटू, अब डिस्टेंस कितना होगा, x डैश प्लस 2, x डैश प्लस 2, दिस इज द डिस्टेंस। ये आपका 2 था, ये थोड़ा बिट गया, ये कितना था, ये आपका 2 मीटर है, राइट। सो दिस इज x डैश 6 इंटू x डैश प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। हम क्या करेंगे, x डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, सो 19x डैश minus 6x dash, this is equal to minus 6 dash, this is equal to 12, right। ये minus 12 उधर हो गया, 12 हो गया, तो 19x dash ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 13x dash, this is equal to 12, therefore x dash is equal to 12 by 13, तो ये कैलकुलेट कर लो कितना आता है, राइट। तो इस तरीके से दिस इज द एक्स डैश, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये आपका पॉइंट हो गया कि हमें पॉइंट अगर कंट्राफ्लेक्चर निकालना हो तो कैसे निकालना है, इसको आप दोबारा ध्यान से सुनिए। जिस पॉइंट के जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे, जिस
पॉइंट के ऊपर आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो जो पॉइंट होगा आपका वो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होगा। अब हमें उस पॉइंट को निकालना है कि ये पॉइंट जो है बीम के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर हमें आएगा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो होगा। तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर ये जो पॉइंट था डायग्राम में, जहां से आप प्रोजेक्शन ड्रा कर लीजिए और ये बीम के ऊपर एक साइड से इधर से ले लीजिए डिस्टेंस, या इधर से ले लीजिए। मैंने इधर से इसलिए लिया था, इट इज ए सिंप्लीफाइड, जहां पे दो फोर्सेस हैं। तो मैंने ये डिस्टेंस आपका इस पॉइंट सी से इस पॉइंट एफ का डिस्टेंस ले लिया मैंने एक्स डैश, और एफ के ऊपर मैंने मूवमेंट निकाल लिया और इसको इक्वेट कर दिया इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो एफ का मूवमेंट था ये मूवमेंट है एट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, और एट द कंट्राफ्लेक्चर जो पॉइंट बेंडिंग मूवमेंट है एफ था वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो जहां से मैंने एफ का मूवमेंट निकाला फ्रॉम दिस फोर्स एंड फ्रॉम दिस फोर्स, और मूवमेंट निकालने के बाद जहां से मुझे एक्स डैश की वैल्यू मिल गई कि अगर आपकी एक्स डैश की वैल्यू इतनी है फ्रॉम दिस पॉइंट, कि जहां पे जो आपका बेंडिंग मूवमेंट होगा बीम के ऊपर वो क्या होगा, जीरो होगा। तो जहां पे जो ओवरहैंग बीम के जहां पे जितने भी कंसेप्ट थे इसमें, वो सारे कंसेप्ट मैंने वन बाय वन क्लियर कर लिए हैं। तो जस्ट देखता हूं कि अगर आपका टाइम है तो एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं लेता हूं, अगर नहीं है तो उस प्रॉब्लम का मैं कल सेपरेट उसका लेक्चर दूंगा, राइट। सो देखते हैं कि अभी नेक्स्ट क्या है हमारा। तो मैंने एक प्रॉब्लम मैंने और ले लिया, थोड़ा सा इसको थोड़ा जल्दी करेंगे बिकॉज ऑलरेडी द टाइम इज टू मच। इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट आया था तो जो मैं आपको समझाना पड़ जाता था। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कर लीजिए, बट शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। हमें आर ए और आर डी, आर ए और आर डी ये दो रिएक्शंस हैं आपके, इनकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, आर ए और आर डी की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, आप सिग्मा एम डी दिस इज इक्वल टू जीरो, मीन्स मूवमेंट एट पॉइंट डी, डी के ऊपर हम मूवमेंट ले लेते हैं। तो क्या आएगा मूवमेंट, देखिए यहाँ पे आर ए इंटू दिस इज पॉजिटिव क्लॉकवाइज, आर ए इंटू टू इंटू टू इंटू टू सिक्स, आर ए इंटू सिक्स, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एट पॉइंट बी। ये तो सीधा कपल है, इसमें डिस्टेंस नहीं लिखना आपने, -12, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ कम टू दिस, दिस इज सी, दैट इज you are taking the movement at point D, yes, you are calculating RA this। तो C आपका क्या होगा, C आपका क्या होगा, पॉइंट D के ऊपर ले रहे हैं, C इज एंटी क्लॉकवाइज, सो -6 इंटू टू, राइट, -6 इंटू टू, और जहां पर भी फोर्स होगी वहां पे यस, जहां पर भी एक फोर्स थी दैट इज आल्सो 6 किलो न्यूटन, दैट इज 6, दैट इज आल्सो 6 किलो न्यूटन। तो जे फोर्स क्या होगा, जहां पे राइट साइड में, राइट साइड से फोर्स जो है ये नेगेटिव होगा, तो माइनस 6 इंटू वन, -6 इंटू वन, -6 इंटू वन, दिस इज इक्वल टू, यू अंडरस्टैंड दिस। तो आर ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, यहां से आर ए इंटू 6, 12 -12 0,
So this is your this minus 24. Sorry, this is plus होना चाहिए. Yes, this is clockwise. हाँ. So this is minus 24 plus 6 is equal to 0. Therefore, RA is equal to 3 kilonewton. RA आपका 3 kilonewton आ गया. तो अब आप दूसरा ले लीजिए सिग्मा Fy. This is equal to 0. Sigma Fy is equal to 0 means RA plus RD equal to 0, and RA is RA plus RD, RA plus RD, और ये कितना होगा -6, and that is also -6 is equal to 0. Therefore RA plus RD is equal to 12. RA कितना है 3 plus RD 12. Therefore RD is equal to 9 kilonewton. तो RD की वैल्यू भी आपके पास आ गई 9 kilonewton और RA आपका आ गया 3 kilonewton, राइट. तो जहाँ पे आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कर लेंगे, ये कितना है 3 kilonewton and this is 9 kilonewton RD, right? So this you have calculated. Now we will draw the shear force of this. तो shear force आप सीधा ड्रा करेंगे, ज्यादा इसमें हम फर्स्ट यू ड्रा द प्रोजेक्शंस. लाइनें खींच लो, आप प्रोजेक्शन ड्रा करो इसमें, and then right, now this is your datum line. Now you draw the datum line of this. तो आप एक डेटम लाइन ड्रा कर लीजिए जहाँ. तो दिस इज योर डेटम लाइन 0 and 0, राइट. अब आप आ जाइए इसमें. तो जहां से देखिए लेफ्ट साइड ऑफ ए तो फोर्स क्या थी 0 थी, और जहां पे आपका सडनली फोर्स चेंज हुआ दैट इज 3 kilonewton. तो जे पॉइंट में ले लेता हूं 3 kilonewton. तो जहां से लेके जहां तक ये आपका आ गया 3 kilonewton, राइट. अब देखिए फ्रॉम ए टू बी देर इज नो लोड. तो डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन, देर इज नो लोड, डायग्राम इज स्ट्रेट लाइन. अब इस कपल इज नॉट ए फोर्स, सो यू डोंट हैव टू टेक द कपल हियर. अगर आप देखे हुए बी के ऊपर कपल है तो यू गेट कंफ्यूज योरसेल्फ. कपल फोर्स नहीं है, इसलिए इस कपल का देर इज नो इफेक्ट ऑन दिस. तो इसका मतलब है फ्रॉम ए टू सी क्या होगा, देर इज नो लोड. लोड W जहां पर भी 0 है और जहां पर भी लोड आपका 0 है. फ्रॉम ए टू सी द लोड इज 0. तो आपकी क्या आएगी ये फ्रॉम ए टू सी दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट. ए टू सी क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा. सी के ऊपर देखिए 6 kilonewton डाउनवर्ड, इधर 3 kilonewton है. तो जे इस पॉइंट के ऊपर मैं लेता हूं -3 आ जाएगा, राइट. तो जहां से लेके जहां तक, राइट, ये आपका आ गया -3 kilonewton. यू अंडरस्टैंड दिस. अब फ्रॉम हेयर टू हेयर अगेन क्या है, देर इज नो लोड. W जहां पर भी 0 होगा. फ्रॉम C टू D, और D के ऊपर क्या है आपका 9 kilonewton है. तो जहां से आप 9 kilonewton ले लीजिए, 3 और 6 ये करीब इस पॉइंट के ऊपर आएगा. ये 9 kilonewton इस पॉइंट के ऊपर आएगा नीचे से.
तो ये जहां से राइट ये 9 किलो न्यूटन ऐसे आया, जस्ट लाइक दिस, एंड देन इट इज देयर इज नो लोड हेयर भी, जहां पे क्या था कोई लोड नहीं है, जहां से लेकर जहां तक स्ट्रेट लाइन, और फिर आप इधर से इसको इस तरीके से मिला देंगे, राइट। तो ये आपकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो थी, ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी आ गई। दिस इज योर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो here also you see here that shear force diagram changes the sign twice here। जहां पे जो shear force diagram है उसने भी साइन को 2 दफा चेंज किया है। एक तो आपका पॉइंट C के ऊपर चेंज हुआ है, और दूसरा साइन आपका पूरा पॉइंट D के ऊपर चेंज किया है, राइट। सो एट पॉइंट C it has changed the sign, at point D it has changed the sign। तो 2 के ऊपर किया है, तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन 2 पॉइंट्स के ऊपर होगा, आइदर एट पॉइंट C और एट पॉइंट D, राइट। तो अगर हम एरिया वाइज जहां पे देखें, एरिया वाइज देखें, अगर मैं इसको कहता हूं कि MC माइनस MA करना है मैंने मूवमेंट, तो MC माइनस MA का जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा उसका एरिया ये होगा 3 into 4 12, राइट। और अगर मैं इसका MD माइनस ME करके देखूं तो इसका जो एरिया होगा 9 into 1 दैट इज 9। सो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो क्या है, इसका ज्यादा है MC माइनस MA का। तो सो मूवमेंट एट पॉइंट C दैट इज ग्रेटर दैन द मूवमेंट एट पॉइंट D, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर जहां पे शेयर फोर्स, ये देखिए ये जहां पे शेयर फोर्स पॉजिटिव था, ये शेयर फोर्स आपका नेगेटिव है, और फिर ये शेयर फोर्स इस पॉइंट के ऊपर आपका पॉजिटिव हो गया। तो मींस इट इज एट दिस पॉइंट, सो जहां पे हमें x की वैल्यू या कोई वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इट इज ऑलरेडी ऑन दीज पॉइंट्स। यहीं पे जो अपना साइन जो था, जो आपके एग्जैक्ट पॉइंट थे उनके ऊपर उसने साइन चेंज किया। तो आप कह सकते हैं कि जहां पे और जहां पे जो साइन चेंज किया, तो जहां तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जहां होगा, तो अगर मैं इफ आई विल कंसिडर द डिफरेंस ऑफ द, यू कैन से डिफरेंस ऑफ द मूवमेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम। तो इफ आई विल से दैट द MC माइनस M0 दैट इज द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ दिस नंबर 1, एंड ME minus MD that is the shear force diagram of the number 2। तो जहां पे अगर आप देखेंगे तो शेयर फोर्स डायग्राम जो नंबर 1 है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2। तो ये आप कह सकते हैं कि जो आपका मूवमेंट एट C होगा MC दैट इज ग्रेटर देन योर दिस मूवमेंट एट D, राइट। ये हो गया पहला पॉइंट। आप देखिए इसका बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, तो प्रोसीजर तो सारा सेम होगा। बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो इसके हम क्या करेंगे, इसके हम मूवमेंट निकाल लेंगे। तो देखिए MA क्या आएगा आपका 0, राइट। अब देखिए पॉइंट B के ऊपर आपको 2 मूवमेंट मिलेंगे। एक मूवमेंट तो आपको J मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, मींस MB विल हैव 2 मूवमेंट। एक आपको मिलेगा -20 जो कपल इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट। और दूसरा मूवमेंट ये मिलेगा 3 into 2 दैट इज 6। और ये फर्स्ट मूवमेंट था, और MB के ऊपर दूसरा मूवमेंट आपको मिलेगा 3 into 2 दैट इज 6 किलो न्यूटन मीटर, राइट। आप पॉइंट C के ऊपर आ जाते हैं। तो पॉइंट C के ऊपर हमारा कौन सा मूवमेंट होगा, पॉइंट C MC। तो MC के ऊपर कैलकुलेट अगर हम करें तो क्या होगा, जहां पे 3 into 4 12 MC 3 into 4 12, और जो J वाला है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज दैट इज आल्सो 12 -12। तो MC के ऊपर आपका जो मूवमेंट होगा
दैट इज जीरो। MC के ऊपर जो मूवमेंट होगा आपका दैट इज जीरो। अब MD की बात करें तो MD के ऊपर मूवमेंट ले लेते हैं हम। दिस इज द MD, तो मैं राइट साइड से लूंगा। अगर MD के ऊपर मैं ये जो राइट साइड से मूवमेंट लेता हूं, अगर राइट साइड से मूवमेंट लेता हूं तो राइट साइड से अगर लेता हूं तो दैट इज होगा -6 × 1। क्लॉकवाइज राइट साइड का क्या होता है साइन कन्वेंशन में? नेगेटिव साइन। सो -6 × 1 दैट इज -6 किलो न्यूटन मीटर। और इसी तरीके से मूवमेंट एट ME दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे मूवमेंट आ गए सारे। तो अगर मैं इसका डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करूं तो ये मैं ड्रा कर लेता हूं, यहाँ पे बीम ड्रा कर लेता हूं। तो सेम ही आएंगे ये रिएक्शंस RA, ये पॉइंट V, ये पॉइंट आपका C, ये पॉइंट D, राइट। तो ये 1 मीटर है, लिखना है लिख दीजिए। देखो पहले ही लिखा था आपको 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, राइट। तो ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी हमें सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो अब हमें बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इसको फर्दर आप कहें कि ये जो डायग्राम है इसके साथ ज्वाइन किया है। तो मैं जहां से रिएक्शंस ड्रा कर लीजिए एंड देन यू विल टेक द डेटम लाइंस। डेटम लाइन ले लीजिएगा। आप कहेंगे कि सर ने ये लिखा नहीं, मैं इसकी रिएक्शंस भी लिख लेता हूं। यहाँ पे जो जो थी फोर्सेस आपकी आ रही थी आपका 3 किलो न्यूटन, पॉइंट बी के ऊपर आपका कपल था 12 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, सी के ऊपर फोर्स थी आपकी 6 किलो न्यूटन एंड ई के ऊपर भी आपकी फोर्स एक्ट कर रही थी 6 किलो न्यूटन, राइट। तो ये सारा था। और ये जो एक रिएक्शन फोर्स ये थी आपकी, दिस इज द रिएक्शन फोर्स, और एक रिएक्शन फोर्स आपकी ये थी RD, दिस इज 9 किलो न्यूटन, राइट। चलो ये हो गया सारा। अब देखिए इसकी बेंडिंग मोमेंट हम ड्रा करते हैं। वी विल ड्रा द बेंडिंग मोमेंट। तो एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी टेक द डेटम लाइन। ये आपकी डेटम लाइन है, दिस इज कॉल्ड 0 0, राइट। दैट इज द रेफरेंस डेटम लाइन एट द 0 0 पॉइंट। सो MA इज 0। अब देखिए अब हम इसके क्या करेंगे, हम इसका रंगोली करेंगे, इनके पॉइंट्स भरेंगे। तो मूवमेंट ऑफ MA क्या है, 0 है, तो ये 0 आ गया। जहां पे MB -12 किलो न्यूटन एंड +6 किलो न्यूटन। तो MB एक आपका -12 किलो न्यूटन है, तो मैं जहां पे ले लेता हूं, दो वैल्यूज हैं इसकी। -12 किलो न्यूटन मीटर है, नॉट मीटर, यस। और दूसरी वैल्यू है आपकी इसकी 6, सपोज ये आपका 6 किलो न्यूटन मीटर, राइट। So MB is having the two values. तो ये जहां से 6 था, तो जहां पे आप 6 लिख लीजिए, -12 की जगह क्या लिखेंगे आप 6, तो ये हो गया 6, ये हो गया 0 से ये नीचे चला गया, ये आपका आ गया -6 किलो न्यूटन, राइट, मीटर, ये पॉइंट। अब उसके बाद MC क्या है आपका, MC इज 0 पॉइंट। MC, व्हाट इज MC, दैट इज 0, दिस पॉइंट, राइट। एंड MD इज -6, तो MD क्या आएगा आपका -6, मैं इधर ले लेता हूं, MD इज
-6 जिस पॉइंट के ऊपर, दैट इज ये 0 आ गया, ये आपका -6 किलो न्यूटन मीटर एंड ME इज 0, और ME क्या है आपका 0 है, राइट। अब हमें ये जो है, अब देखिए शेयर फोर्स जो थी फ्रॉम A to C, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। A to C आपका क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल है। तो A से B तक आपकी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, जस्ट लाइक दिस, राइट। उसके बाद B से C ये सीधा ड्रॉप करेगा, क्योंकि दो वैल्यूज हैं इसकी, तो ये B से C पहले ये सीधा आएगा बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से, और फिर इस पॉइंट से फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज फ्रॉम B to C, शेयर फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। तो फिर ये जहां से इस तरीके से यस इस तरीके से, फिर MD -6 किलो न्यूटन, MD कितना है 6 किलो न्यूटन, दिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल। तो ये आपकी लाइन इस तरीके से बनेगी, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर, जस्ट लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड। एंड और फिर MD से ME देयर इज नो लोड, शेयर फोर्स जो थी आपकी क्या थी, हॉरिजॉन्टल है। तो फिर ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस, सॉरी। तो ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना, ये आपका दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था। तो आपने देखा कि पॉइंट C के ऊपर शेयर फोर्स डायग्राम आपकी चेंज हुई थी, शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस द साइन एट पॉइंट C। तो जहां पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है आपका एट दिस पॉइंट, राइट, तो जहां पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका था वो मैक्सिमम नहीं आया, जहां पे क्या आया कि बेंडिंग मोमेंट आपका मिनिमम दैट इज इक्वल टू 0। सो जहां पे यही कंसेप्ट आपको मैं देना चाहता था कि दिस इज नॉट नेसेसरी that where the shear force diagram changes the sign, your bending moment is maximum, sometime your bending moment is minimum or equal to 0। तो आप कह सकते हैं here at the point C shear force diagram changes the sign, right, जहां पे, तो जहां पे जो bending moment था ये आपका क्या आया, 0 भी आया। फिर आ गया at point D shear force डायग्राम चेंजेस द साइन, तो आपका बेंडिंग मोमेंट यहां पे मैक्सिमम आएगा दिस पॉइंट के ऊपर, राइट, और उसके बाद ये 0 हो जाएगा। तो जहां पे आपने एक कंसेप्ट और जहां पे आपने ऐड कर लिया, इट डजंट मीन दैट वेयर द शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस द साइन, योर द बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम देयर, सो योर बेंडिंग मोमेंट इज 0 here, but it is not a point of contraflexion. The bending moment is not changing here. The bending moment is not changing here. It is coming to this point, then again it is coming downward. It is not changing from negative to positive, right? So it is not changing the sign, but the bending moment is 0 at this point. और अगर इस पॉइंट को मैं देखूं एज पर माई शेयर फोर्स, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सेपरेट ड्रा किया, इफ आई विल ड्रा हियर, तो आपको सीधा लगेगा कि C के ऊपर एट पॉइंट C जहां पे आप देखेंगे शेयर फोर्स डायग्राम दैट चेंजेस द साइन, that is from positive to negative. So as per the definition we are saying that when the shear force changes the sign, at that point the bending moment is maximum. But here you have seen that this statement is contradictory also. It is not always that the bending moment is maximum. Sometimes the bending moment is 0 or minimum there. तो जहां पे आपने देखा कि at this point, at point C, shear force that changes the sign, but the bending moment is 0 at this point. So this is also one of the concept which you keep in your mind. तो जहां पे आपको बेंडिंग मोमेंट 0 मिला, और जहां पे जो दूसरा जो साइन चेंज हुआ जहां पे फ्रॉम D पे, जहां पे फिर शेयर फोर्स डायग्राम चेंज हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम
if we will calculate, we will find that here that bending moment is maximum. तो J आपका, you understand that J आपका इस तरीके से ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम का जो कंसेप्ट मैं देना चाहता था इन केस ऑफ ओवरहैंग बीम। आई थिंक जहां पे जितने भी छोटे बड़े जो भी कंसेप्ट थे, आई हैव ट्राइड टू गिव यू all the concept there. I have tried to give you the best of the things whatever I am having. तो जे आपका ओवरहैंग का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो टॉपिक था, जो लेक्चर था, दिस इज कंप्लीट वन। लेकिन ये आपने सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम करके शो नहीं देना है जहां से सिर्फ आपको कंसेप्ट मिलेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि ये मैं दो प्रॉब्लम्स जहां पे करवाई तो मोर देन इट टेक्स 1.5 आवर। तो सारी प्रॉब्लम्स, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू गो फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द ऑनलाइन क्लासेस। ओनली आई कैन जस्ट टीच यू, आई कैन गिव यू द होल ऑफ द कंसेप्ट so that you should not cram anything when you will go for the any numerical problems from your books or somewhere else. तो अगर आपके कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, हर चीज़ आपकी क्लियर होगी, तो आपके लिए ये डायग्राम ड्रा करना, आपके लिए ये करना, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट वन। तो इस जो ये लेक्चर है इसको आप ध्यान से सुनिए, देखिए और अपने जो बाकी साथी हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी साथी हैं, उनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए सो दैट कि ये लेक्चर जो है वाइडर रीच में लोगों के पास पहुँचे। जे आई एम जस्ट गिविंग द फ्री लेक्चर्स, आई एम नॉट taking anything, I'm not charging anything. So if you will inspire me, if more and more students will join to watch my lectures, definitely I will just increase the, you can say, intensity of the lecture, increase the timing of the lectures. So this is today for all this, and I think the chapter of this shear force and bending moment diagram that I have completed, and the now next series of lecture that is very, very important one, and I just request and to all the students who are just engaged with me through this YouTube channel and otherwise, that they should very much keen to understand the concept of the deflection of beam. Deflection of beam. That is a very, very, very important topic, and it is a number of series of lectures there. Mostly, I think 9 to 10 lectures of the series that should be there, either more than that. So I want that you all introduce to your friends and all the students that the new lecture of series I will start very shortly after completion of these lectures, and next series is in the strength of material, that is deflection in beam. Thank you very much. Thank you.